So good morning. We'll start with the sympathetic nervous system. So in the sympathetic nervous system, basically this is lumbosacral outflow, and catecholamines over here. This catechol are the neurotransmitters. Catechol is a ring. Okay, so you don't have to learn the structure of catechol, but catecholamines examples are epinephrine, adrenaline, noradrenaline, dopamine. These all neurotransmitters or hormones are came from the tyrosine amino acid, not tryptophan. Okay, so tyrosine. So this tyrosine is very important in our diet. Okay, and when you take in our diet, what will happen? The tyrosine will come inside the nerve cell. Right now, this will be acted on the tyrosine hydroxylase is the late limiting step, and this will convert into dopa. Now this dopa will be acted on the dopa decarboxylase. Okay, it is very important step. In Parkinsonism also you will learn about this peripheral and central dopa decarboxylase enzyme. Okay, and why we give combination of levodopa and carbidopa. Now dopa will be converted into dopamine by dopa decarboxylase. Okay, now this dopamine will be actually, what will happen, that dopamine will be taken up by the vesicle with the help of VMAT1 matlab uptake will be there. Okay, and in the vesicle there lies the enzyme dopa hydroxylase, which will convert dopamine into noradrenaline. So dopamine to noradrenaline occurs in synaptic vesicle. Okay, now what will happen? Most of the sympathetic nervous system has the neurotransmitter norepinephrine, except in the, for example, sweat gland. So in the sweat gland, what happens? I have told you, this is acetylcholine present. In the mesentery, in the kidney or mesentery, what happens? Kidney or mesentery, it will only be present with the dopamine. Okay, only dopamine will be present. And in the adrenal medulla, there comes the role of adrenaline. Okay, so adrenaline, this enzyme will be present in the adrenal medulla, phenylethanolamine methyl transferase. So there will be nothing but the transferase, transfer of one methyl group. Okay, so there will be formation of adrenaline. From the noradrenaline, it will form the adrenaline. Okay, clear? So this is very important. For the dopa decarboxylase to function, we need a cofactor, that is vitamin B6, that is PLP, pyridoxal phosphate. Very important. Why we administered vitamin B6 with the dopa we don't use vitamin B6. Okay, we don't use a B complex vitamin with the because it will act on the dopa decarboxylase and increase the activity of the enzyme. So it will decrease the levodopa in the periphery itself. Okay, so you will learn more about it when we learn about Parkinsonism and all. Okay, now what will happen? Again, another thing we have to understand, that when the noradrenaline, adrenaline or dopamine will be released over here, it will be degraded by something called COMT and MA. Okay, so there will be metabolism. Okay, and the metabolites are identified in the urine and can be considered, like what is the amount of the hormones which is present in the blood. Okay, now what will happen? Other metabolites will be reuptake, will be there will be reuptake of the hormones which are not degraded, and it is also a very important step, but this is not the rate limiting step. The rate limiting step is the tyrosine hydroxylase enzyme, where the tyrosine is converted into the dopa. Okay, so this is very important. You have to understand this. And there are few drugs which are going to act over here. For example, me-tyrosine or methyl tyrosine. It is the drug of choice in pheochromocytoma. It decreases the tyrosine hydroxylase activity. Also, dopa decarboxylase will be inhibited by the carbidopa. This is inhibited by the carbidopa or benzarazide. Okay, now VMAT, this reuptake, it is reuptake by the synaptic vesicle. So this is actually inhibited by reserpine. Okay, Rolfidia serpentina से मिलता है reserpine. Now tetrabenazine
benazine, valbenazine. Okay, now these are VMAT1 inhibitors, right? Now tetrabenazine is used for the treatment of tics, okay, and valbenazine is used in the tardive dyskinesia. You will learn more about it later. The reuptake inhibitors are nothing but the cocaine, very important, and tricyclic antidepressants. Now there is a calcium, yes, there is calcium will be there, and the exocytosis will be there, okay, that will be inhibited by the guanethidine beryllium. So in each step there is a something inhibitor present, and COMT and MAO inhibitors I have already told. There is MAO A and MAO B, and you will learn more about it later. Now there are two types of receptors for sympathetic nervous system, that is alpha and beta. Okay, there is alpha and beta. So you will learn more. We will learn more about this in later. So we have seen that carbidopa and benzarazide are like inhibitors of dopa decarboxylase peripheral, so it's used in the Parkinsonism. And there is droxidopa, this is pro-drug for norepinephrine in treatment of hypotension. And guanethidine and beryllium, I've told that it is present in the adrenergic neural blockers. These are release of catecholamines को inhibit करता है. So the side effect is severe postural hypotension. Now antidepressants, TCA or cocaine, I've told these are like addiction or vasoconstrictor properties. These are reuptake of catecholamines को वो क्या करेगा, inhibit करेगा. ठीक है, तो receptors are alpha and beta. Okay, all the beta receptors are GS, so it will increase the cyclic AMP. And alpha means alpha 1 and alpha 2. Alpha 1 is subdivided into alpha 1A and D and alpha 1B. ठीक है, तो B for blood vessels causing the vasoconstriction, but alpha 1A and 1D is present in the, ठीक है, in the internal uterine sphincter and iris causing the mydriasis. Alpha 1A is present in the iris, that is the आँख में आई में पाया जाता है, ठीक है, और it cause the mydriasis. ठीक है, alpha 2A is basically present in the, it is presynaptic autoreceptor, or is also is a heteroreceptor because it decreases the acetylcholine. It acts on the brake. Alpha 2A acts as a brake. Alpha 2B is postsynaptic, and basically it will be acting just like alpha 1. It will be acting just like alpha 1. Okay, so these are very important to understand, and these things you have to consider it very properly. Like alpha 1, like 1B is vasoconstriction. Yes, so what is the counterpart? Beta 2. Beta 2 is the counterpart, it will cause vasodilation. ठीक है, उसी तरह से किडनी में renal, in renal all types of present. Alpha 1 is present, it causes vasoconstriction. D1 is present, that is causing vasodilation. And JG cell is present, that is beta 1 is present in the JG cell, जो रेनिन का सिक्रीशन में हेल्प करता है. ठीक है, क्लियर. नाउ दिस अल्फा 2A आई टोल्ड यू, दिस इज द हेटेरो रिसेप्टर. इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द एसिटाइलकोलिन डिक्रीज करने में मदद करता है. और यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर, मतलब ये सिक्रीट करके जब यहाँ पे जो प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होता है अल्फा 2A रिसेप्टर, जब हार्मोन्स का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इट विल एक्ट एज अ ब्रेक, तो वहाँ से रिलीज होने से रोक देगा. ठीक है, तो अल्फा 2 एगोनिस्ट का नाम बताइए, क्लोनिडिन. ठीक है, तो क्लोनिडिन का काम है इस तरह से वो काम करेगा, ब्रेक लगाएगा. सडन विड्रॉल ऑफ क्लोनिडिन हम लोग मना करते हैं, क्यों? क्योंकि अचानक से अगर हम छोड़ देंगे तो ब्रेक हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट. मतलब बहुत सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएगा एक बार में, इट विल कॉज अ सीवियरिटी ऑफ द रिस्पॉन्स, टॉक्सिटी मतलब शो करेगा. ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. यही मैंने बताया था अभी, अल्फा 1B और बीटा 2 जो है ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ये वेजोडायलेशन करवाएगा. याद करने के लिए ABCD याद करना है. A C के साथ जाएगा, B D के साथ जाएगा. ठीक है, तो बीटा 2 में डायलिटेशन होगा और अल्फा के साथ कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. नाउ बीटा इज GS. आई हैव टोल्ड यू दैट अल्फा 1A इज GQ. तो अल्फा में हम लोग याद करो, अल्फा में क्या है, अल्फा 1A एंड अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. अल्फा 1 इज GQ, तो यहाँ पे क्या होगा, IP3 DAG. ठीक है, और क्या आएगा, कैल्शियम. ठीक है, और अल्फा 2 इज G इनिबिटरी, इनिबिटिंग कर रहा है, मैंने बताया अभी इनिबिट कर रहा था. दिस इज डिक्रीज इन द साइक्लिक AMP.
डिक्रीज इन द साइक्लिक एमपी, वेर एज ऑल बीटाज बीटा 1 से लेके बीटा 3 तक दीज आर जी स्टिमुलेटरी इंक्रीजेज द साइक्लिक एमपी. नाउ बीटा जीएस मैंने बताया बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बेसिकली बीटा 1 इज प्रेजेंट इन द हार्ट एंड इन द जेजी सेल्स. ठीक है, तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा. बीटा 1 स्पेसिफिक हम लोग कार्डियो सेलेक्टिव हम लोग बीटा ब्लॉकर्स का बात बोलते हैं. तो दिस इज बीटा 1. जेजी सेल्स में रेनिन इंक्रीज करता है. ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है. बीटा 2 बेसिकली क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है बीटा 2? दीज आर द स्केलेटल मसल इज कॉजिंग द ट्रेमर. स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है. ब्रोंकोडाइलेटेशन, टोकोलाइटिक एंड वेजोडाइलेशन. टोकोलाइटिक एंड वेजोडाइलेशन. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कहाँ पे पाया जाता है. आई विल रिवाइज एट द एंड अगेन. बीटा 3 इज समथिंग न्यू. दिस इज प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू एंड ब्लैडर को रिलैक्स करता है. नो पैसेज ऑफ यूरिन. ठीक है, सो आई विल रिवाइज इट अगेन. फॉरगेट अबाउट दिस, ये दिस याद रखना. अल्फा 1 कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अल्फा 1 का अल्फा 1A, अल्फा 1B और अल्फा 1D. तो अल्फा 1A कहाँ पाया जाता है? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में पाया जाता है. प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में पाया जाता है और आई में पाया जाता है. अल्फा 1B और D कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल में पाया जाता है. क्लियर, ये चीज़ हो गया. फिर अल्फा 2 का मैंने क्या बोला? अल्फा 2 का अल्फा 2 में जो प्री सिनेप्टिकली पाया जाता है, तो ये ब्रेक करता है, ब्रेक लगाता है टू द सिंपैथेटिक सिस्टम. और पोस्ट सिनेप्टिकली अगर पाया जाएगा तो इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल. ठीक है, ये भी हो गया. देन बीटा 1 से लेके बीटा 3 का बात किया जाए तो बीटा 1 हार्ट में और जेजी सेल में पाया जाता है. बीटा 2 कहाँ पाया जाता है? तो आप याद रखो 3Bs. 3Bs मतलब क्या क्या आ गया? ब्रोंकस, ब्लड वेसल एंड ब्लैडर. 3Bs. ठीक है, उसके अलावा कहाँ पाया जाता है? यूटेरस में पाया जाता है, स्मूथ मसल स्पिंडल में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है. बट याद रखना 3Bs. ठीक है, बीटा 3 का क्या है तुम्हारा? यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, कोरोनरी वेसल में पाया जाता है और एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है. दीज आर लेटेस्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज हाउ वेयर द सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स आर लोकेटेड. ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर. नाउ हर रिसेप्टर का एक एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट का नाम आपको याद करना होगा. अल्फा 1 का एगोनिस्ट का नाम है फिनाइलेफ्रिन. फिनाइलेफ्रिन एक आपका मतलब याद करके रखो. एंटागोनिस्ट में आ जाएगा आपका प्राजोसिन. एंटागोनिस्ट में आपका आ जाएगा प्राजोसिन, जो BPH में हम लोग यूज़ करते हैं, फिनाइल प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया में यूज़ करते हैं. अल्फा 2, तो बेसिकली अल्फा 2 एगोनिस्ट इज प्रेजेंट इन द क्लोनिडिन एंड अल्फा 2 एंटागोनिस्ट इज द योहिम्बिन. अल्फा 2 एंटागोनिस्ट इज द योहिम्बिन. बीटा 1 अच्छा अल्फा 2 का एगोनिस्ट में आपका आ जाएगा डेक्स मेथिडोमिडिन. अच्छा, बीटा 1 में आ जाओ. बीटा 1 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्स मेथिडोमिडिन एंड क्लोनिडिन. दीज आर अल्फा 2 एगोनिस्ट. बीटा 1 का एगोनिस्ट का नाम बताइए. डोब्यूटामीन इज द बीटा 1 एगोनिस्ट. कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और जितने भी आते हैं मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, दीज आर प्रेजेंट इन द दिस इज द एंटागोनिस्ट. ठीक है, बीटा 2 में एगोनिस्ट में आ जाएगा सैल्बुटामोल और एंटागोनिस्ट में आ जाएगा ब्यूटाक्सामीन. ठीक है, बीटा 3 का एगोनिस्ट में ये नाम हमेशा याद रखना है. दैट इज द मीराबेग्रॉन. यूरिनरी ब्लैडर याद रखना. ठीक है, मीराबेग्रॉन. बीटा 2 एगोनिस्ट सैल्बुटामोल जो था ये कहाँ यूज़ किया जाता है? अस्थमा में यूज़ किया जाता है. डोब्यूटामीन कहाँ यूज़ किया जाता है? बीटा 1 एगोनिस्ट यहाँ पे हम लोग शॉक में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. डोब्यूटामीन इज सेलेक्टिव. डोब्यूटामीन इज वेरी सेलेक्टिव ये है और सिंथेटिक है भी है. अच्छा, उसके बाद आपको क्या जानना है? राइट, तो यहाँ पे आपका मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी कुछ देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या है कि बीटा 2 का बेसिकली बहुत रोल है. बीटा 2 क्या करता है आपका? बीटा 2 ग्लूकागॉन का सिंथेसिस को बढ़ाता है. ठीक है, ग्लूकागॉन का सिंथेसिस बढ़ाता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लूकोजेनोलाइसिस करवाता है, मतलब ग्लूकोज भी बढ़ाता है बीटा 2. बीटा 2 का और क्या काम है कि वो हाइपर कैलीमिया करवाएगा, क्योंकि लिवर से रिलीज करवाएगा पोटेशियम को, और हाइपोकैलेमिया भी करवाता है, स्केलेटल मसल का रीअपटेक करवाता है. ठीक है, तो बीटा 2 का ये काम है. सैल्बुटामोल भी हाइपरकैलेमिया में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में. ठीक है, फिर अल्फा 2 का क्या काम है? अल्फा 2 में डिक्रीज द इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल. ठीक है,
वो क्या करेगा, ग्लूकोज का कंसनट्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक है। अब बीटा 3 बेसिकली क्या कर रहा है, बीटा 3 इज इंक्रीज इन द ट्राइग्लिसराइड लेवल, सो इंक्रीज इन द फ्री फैटी एसिड, इंक्रीज इन द फ्री फैटी एसिड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ठीक है। नाउ सिम्पैथोमिमेटिक्स, सिम्पैथोमिमेटिक्स एक्टिंग डायरेक्टली एंड एक्टिंग इनडायरेक्टली, एक्टिंग डायरेक्टली एंड एक्टिंग इनडायरेक्टली। सिम्पैथोमिमेटिक्स जो रिसेप्टर पे काम करता है, दीज आर द एगोनिस्ट, राइट। सो दीज आर आइदर कैटाकोलामीन्स और नॉन कैटाकोलामीन्स। कैटाकोलामीन्स में एंडोजीनस आ सकता है या फिर सिंथेटिक आ सकता है, लाइक डोपामीन। ठीक है। एंडोजीनस में क्या आ गया, नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉन कैटाकोलामीन्स कैन बी गिवन ओरल, बट कैटाकोलामीन्स आर नॉट गिवन ओरली बिकॉज जीआईटी में एमएओ और माओ इनिबिटर्स, ठीक है, माओ इनिबिटर्स एंड COMT जो है वो उसको डिग्रेड कर देगा जो जीआईटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो कैटाकोलामीन्स बेसिकली नॉरएड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन का बात किया जाए तो अल्फ़ा 1 तो अल्फ़ा 2 दोनों में काम करता है, ये वेरी गुड। बट बीटा में अगर देखा जाए तो नॉरएड्रेनालिन बीटा 2 में काम नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि बीटा 2 में नॉरएपिनेफ्रिन का कोई रोल नहीं है, जबकि एड्रेनालिन ऑल रिसेप्टर्स पे काम करता है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉरएपिनेफ्रिन हैज़ नो बीटा 2 एक्शन। नाउ यूजेस में क्या किया जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में यूज़ करते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर प्लस हाइपोटेंशन। यहाँ पे वो बीटा 1 और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा और वो उसमें एक्ट करेगा। डोज क्या है, डोज इज़ 1 मिलीग्राम पर ml, 1 मिलीग्राम पर ml, 8 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट, 8 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट, एंड ऑल्सो यूज इन कार्डियक अरेस्ट, ऑल्सो यूज इन कार्डियक अरेस्ट। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेजोडाइलेटरी शॉक, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेजोडाइलेटरी शॉक, तो यहाँ वार्म शॉक आ रहा है, यहाँ पे वार्म शॉक आएगा, और दिस इज बेसिकली सेप्टिक शॉक प्लस न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक प्लस न्यूरोजेनिक शॉक। इट इज़ नॉट गिवन इन द एनाफाइलेक्टिक शॉक, इट इज़ नॉट गिवन इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, ADRs, एड्रेनालिन। ड्रग ऑफ चॉइस एनाफाइलेक्टिक शॉक का क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन, बट इट इज़ नॉट गिवन इन, नॉरएपिनेफ्रिन इज नॉट गिवन। एड्रेनालिन का एक वायल आता है, वायल के फॉर्म में आता है, तो 1 मिलीग्राम पर ml 1:1000 के रेशियो में हम लोग एंडोट्रेकियल सबक्यूटेनियस IM दे सकते हैं इन केस ऑफ एनी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। 0.1 मिलीग्राम पर ml जो है 1:10,000 के रेशियो में आता है, वो इंट्राऑस्टियस या IV हम लोग दे सकते हैं, बट इंट्राकार्डियक नहीं देते हैं। इन द एनाफाइलेक्सिस 0.5 ml ऑफ 1:1000 जो है वो IM देते हैं, इसमें अगर हाइपोटेंशन शॉक में रहेगा तो, और यहाँ पे 1:10,000 IV के रूप में देते हैं 0.1 ml। ये एनाफाइलेक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस एसिस्टोली या फिर अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तब हम एड्रेनालिन दे सकते हैं। ऑल्टरनेटिव में क्या जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन और वैसोप्रेसिन, तो वह उसको अलग अलग डोज में दिया जाता है। बट द फैक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कार्डियक अरेस्ट का बात किया जाए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग सिर्फ एड्रेनालिन के बारे में सोचेंगे। देयर इज़ नो रोल ऑफ एट्रोपिन एज सच एज पर द ECLS न्यू गाइडलाइन। ऐड टू द लोकल एनेस्थेटिक, यस, लोकल एनेस्थेटिक के साथ ऐड करते ताकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए और सिस्टमिक साइड इफेक्ट ना हो। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ को रोकेगा। ठीक है। लेकिन कब हम लोग लोकल एनेस्थेटिक के साथ एड्रेनालिन को नहीं मिक्स करते हैं, तो फर्स्ट इज़ द MI में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बियर्स ब्लॉक इवरा में, लिम्ब सर्जरी में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। टिप या एंड सर्जरी में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाइपरटेंशन और अरिथमिया में लोकल एनेस्थेटिक के साथ में हम लोग कभी भी एड्रेनालिन को एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो दीज आर द प्लेसेस, दिस आर प्रोटीन MCQ वाइवा क्वेश्चन, जिसमें अरिथमिया, हाइपरटेंशन, MI, हार्ट के 3 कंडीशन, इवरा दैट इज़ द बियर ब्लॉक, लिम्ब सर्जरी में जो करते हैं, और टिप या एंड सर्जरी में होता है वहाँ पे नहीं करते, लाइक पेनाइल, पिन्ना, फिंगर, नोज़, वहाँ पे गैंग्रीन कॉज कर सकता है वेजो कंस्ट्रिक्शन होने का है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। और ऑल्सो क्या है, एपिस्टेसिस जो होता है, नोजल ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, तो उसको में एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर ना। ये चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आ रहा है कि डोपामीन जो होता है ये आपका नेचुरल भी पाया जाता है, मैंने बताया मेजेंट्री और किडनी में पाया जाता है। ठीक है। तो इट हैज़ अ कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन के रूप में डोपामीन दिया जाता है।
ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। मैंने बताया कि डोपामिन से क्या बनता है आपका नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डोज, रिसेप्टर, यूज़ और साइड इफेक्ट ऑफ डोपामिन आपको याद रखना होगा, क्योंकि अलग अलग जगह में वो अलग अलग रिसेप्टर पे काम करता है, अलग अलग डोज पे, ठीक है। तो माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जो है ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए 2 to 10 आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर इससे कम हो जाएगा लो डोज में, मॉडरेट डोज में और हाई डोज में, LMH, ठीक है। तो लो डोज में क्या होगा, वो D पे काम करेगा, D1 पे काम करेगा। मॉडरेट डोज में किस में काम करेगा, वो बीटा 1 पे काम करेगा। और हाई डोज में किस में काम करेगा, अल्फा 1 में काम करेगा, ठीक है। लो डोज में वो वेजो डायलेशन कॉज करवाएगा, हाई डोज में वो वेजो कंस्ट्रिक्शन का कॉज करेगा, और यहाँ पे आइनोट्रोपिक एजेंट के जैसा काम करेगा मीडियम डोज में, ठीक है। सो लो डोज में जैसे लेस देन 2 का है तो D1 पे काम करेगा, वेजो डायलेशन इन किडनी करवाएगा, एंड इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट रीनल फेलियर जिसमें ओलिगूरिया होता है। साइड इफेक्ट में क्या हो जाएगा उसका, हाइपोटेंशन, ठीक है। बीटा 1 जो है वो तुम्हारा किस पे काम करेगा, ऑब्वियसली एक्यूट हार्ट फेलियर पे काम करेगा। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, अरिदमिया हो सकता है, क्योंकि बीटा 1 इज प्रेजेंट इन द हार्ट और रेनिन में है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट बीटा 1 बेसिकली एक्यूट हार्ट फेलियर में हम यूज़ करते हैं एट 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है। मोर देन 10 जो अल्फा 1 एक्शन हमको चाहिए वहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन में चाहिए, दैट इज शॉक, द कंडीशन इज शॉक। और हम लोग शॉक में हाई डोज में डोपामिन को देते हैं मोर देन 10, ठीक है। और उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि शॉक खत्म हो गया लेकिन उसका हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ 3 डोज है, लो, मॉडरेट, हाई, जिसमें D1, B1, अल्फा 1 ऐसे करके काम कर रहा है। और जितना हायर डोज में जा रहे हैं तो इसमें शॉक में यूज़ करते हैं, इसको एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, इसको एक्यूट रीनल फेलियर में, ओलिगूरिया जिसमें होता है तो लो डोज में यूज़ करते हैं ताकि D1 एक्शन हो जाए, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। किडनी इज़ द ओनली प्लेस वेयर मैंने बताया जहाँ अल्फा 1, बीटा 1 और D1 तीनों रिसेप्टर पाया जाता है। सिंथेटिक कैटाकोलामीन्स में आ जाएगा आपका डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन इज द specific beta 1 agonist. It is a drug of choice for acute heart failure. The dose is याद नहीं रखना है बट ठीक है जान के रखिए 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है। T-half जो है डोब्यूटामीन का ये 2 मिनट का होता है, बहुत मतलब मॉडरेट एक्टिंग होता है। एंड बीटा 1 मायोकार्डियम में पाया जाता है, ये आप याद रखो कि एक्यूट हार्ट फेलियर में डोब्यूटामीन का यूज़ है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्ट्रेस इको में टू चेक द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यहाँ पे हम डोब्यूटामीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग जान के रखिए आप टू चेक द कोरोनरी ब्लड फ्लो इन स्ट्रेस इको अगर हम लोग बोलेंगे तो ड्रग ऑफ चॉइस इज़ नॉट डोब्यूटामीन, इट इज़ एडिनोसिन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मतलब राइट। नाउ आइसोप्रिनालिन जो है यहाँ पे देखिए इट हैज़ नो अल्फा एक्शन, इसमें सिर्फ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एगोनिस्ट होता है ये। तो हार्ट फेलियर विथ अस्थमा पेशेंट में हम आइसोप्रिनालिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आइबोपामीन जो होता है ये एक नया दवाई हो गया एक तरह से, अल्फा 1 और D1 पे काम करता है। तो अल्फा 1 बेसिकली दे आर कॉजिंग मिड्रियासिस यूज इन फंडोस्कोपी, और D1 ARF दैट इज़ द एक्यूट रीनल फेलियर में यूज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। फेनोल्डेपाम जो होता है इट इज़ अ पार्शियल D1 एगोनिस्ट, इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ करते हैं विद एक्यूट रीनल फेलियर। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। तो कुछ फिजियोलॉजी इसमें डिस्कस कर लिया जाए। तो कुछ फिजियोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा, फिजियोलॉजी में आपका बेसिकली क्या है कि नॉरएपिनेफ्रिन, तो ऑल एक्सेप्ट द बीटा 2 एक्शन, ऑल एक्सेप्ट द बीटा 2, जिसमें आपका क्या आ जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस तरह से बढ़ा हुआ एक ग्राफ आएगा, इस तरह से बढ़ा ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एपिनेफ्रिन में बाइफेजिक ग्राफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अल्फा 1 के चलते वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और बीटा 2 के चलते वेजो डायलेशन होगा, दैट इज अ बाइफेजिक ग्राफ, ठीक है। आइसोप्रिनालिन में नो अल्फा एक्शन होता है मैंने बताया, तो देयर विल बी ऑलवेज अ बीटा 2 प्रेजेंट। सो यहाँ पे एक यू शेप मतलब एक डाउनवर्ड ग्राफ पाया जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम टैकीकार्डिया आइसोप्रिनालिन करता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बीटा एक्शन होता है, अल्फा एक्शन होता नहीं है। और नॉरएपिनेफ्रिन नॉर्मल हार्ट में तो ब्रेडिकार्डिया करवाता है, बट ट्रांसप्लांटेड हार्ट में टैकीकार्डिया कराता है, ये एक MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट। एड्रेनालिन में बाइफेजिक रिस्पॉन्स होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा ब्लॉकर और एड्रेनालिन को यूज़ किया जाए तो ओनली बीटा 2 एक्शन पाया जाएगा, दिस इज द वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल।
अल्फा ब्लॉकर प्लस एड्रेनालिन को यूज़ किया जाए तो ओनली बीटा 2 एक्शन विल बी देयर बिकॉज अल्फा इज ब्लॉक्ड, तो वहाँ पे वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल होगा। और उसी के बाद अगर मान लीजिए बीटा ब्लॉकर दे दिया जाए और एड्रेनालिन के साथ दिया जाए तो देर इज ओनली बीटा ब्लॉकेज हो जाएगा और अल्फा 1 विल बी प्रेजेंट, तो वेसोमोटर री रिवर्सल ऑफ डेल विल बी प्रेजेंट, वेसोमोटर री रिवर्सल ऑफ डेल विल बी प्रेजेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैटेकोलामीन्स। नाउ सम नॉन कैटेकोलामीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द फिनाइलेफ्रिन, जिसका ओनली यूज़ जो अभी देखा जाता है वो होता है कि आपका फंडोस्कोपी में हम लोग यूज़ करते हैं एज एन आई ड्रॉप्स। अल्फा 1 पे काम करता है, मिड्रियासिस करता है, एक्ट्स ऑन द अल्फा रिसेप्टर, दैट इज़ द फिनाइलेफ्रिन। ठीक है, उसी तरह से फिनाइलेफ्रिन, मिडोड्रिन और मिथोक्सामीन जो होता है, दीज आर ऑल्सो वेसोप्रेसर्स, दीज आर द वेसोप्रेसर। दिस इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन द एओटिक डिसेक्शन, जो हम लोग वेसोप्रेसर ऑफ द चॉइस इन द एओटिक डिसेक्शन, रप्चर ऑफ मायोकार्डियम से बचाता है। ठीक है, ऑल्सो मिडोड्रीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन में मिडोड्रीन हम लोग यूज़ करते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट के रूप में अगर बात किया जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ राइनोरिया हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेजल ड्रॉप में ज़ाइलोमिथाजोलिन आप लोग बहुत यूज़ किए होंगे, ऑक्सीमिथाजोलिन, नेफाजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन, तो ऑल द जोलिन्स आर यूज इन द नेजल ड्रॉप्स और बहुत कॉमन है ये। ठीक है, इन द ओरल में हम लोग फिनाइलेफ्रिन, स्यूडोएफिड्रिन और डी कोल्ड में पहले यूज़ किया जाता फिनाइल प्रोना नैलामीन, बट यहाँ पे डी कोल्ड में ये बैन कर दिया गया बिकॉज इट कॉजेज द हेमोरेजिक शॉक इन मेनी पेशेंट्स, तो डी कोल्ड इज़ लाइक नियरली बैंड। सो ये दवाई पहले यूज़ किया जाता था, तो दिस इज़ हिस्ट्री। नाउ क्रॉनिक यूज़ ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंट, अगर ऑक्सीमेटाइजोलिन और ये सब को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इस्कीमिया होगा और एट्रोपिक राइनाइटिस होगा। ये ENT का क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम क्या है, राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे आ जाते हैं, तो अल्फा 2 एगोनिस्ट के बारे में मैंने बताया था, दिस आर द सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स और यहाँ पे कॉजेज द काल्मिंग इफेक्ट। फॉर मोस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इज द क्लोनिडीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लोनिडीन। ठीक है, और डेक्समेडिटोमिडिन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ICU सीडेशन में IV के रूप में यूज़ करते हैं। टिजानिडीन, दिस इज द सेंट्रल एक्टिंग स्मूथ मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, मैंने बहुत बार यूज़ किया, मतलब लाइक इट्स वेरी गुड। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने से वी कैन यूज इट इन द कॉम्बिनेशन, इट इज़ वेरी कॉमन मसल रिलैक्सेंट। अल्फा मिथाइल डोपा इज ऑल्सो यूज, yes, in the pregnancy it is used. Guanfacine is used, this is the longest acting drug used in the Tourette syndrome और the tic disorder। ठीक है, और the tic disorder और Tourette syndrome यहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे गुआनफैसिन। ठीक है, क्लोनिडीन का बारे बात किया जाए तो यहाँ पे एक स्पेशलिटी क्या आ जाती है क्लोनिडीन का, वाई इट इज़ सो मतलब ब्यूटीफुल ड्रग, इट इज़ एन अल्फा 2 एगोनिस्ट, ऑल्सो इट इज़ एन I2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो I2 में क्या है, इमिडाजोलिन एगोनिस्ट भी है। ठीक है, यही स्पेशलिटी होती है। एक I2 एगोनिस्ट का नाम बताइए, तो दिस इज द मॉक्सोनिडीन। मॉक्सोनिडीन, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मॉक्सोनिडीन इज द इमिडाजोलिन एगोनिस्ट। ठीक है, बट क्लोनिडीन क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट प्लस I2 एगोनिस्ट बोथ है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आ जाएगा, किसी भी तरह से दे सकते हैं, ओरल, IV या ट्रांसडर्मल पैच में। इट हैज़ अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग, इट रिक्वायर्स थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ ऑल्सो कहाँ यूज़ करते हैं, ये इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ क्लोनिडीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में जहाँ हॉट फ्लशेस आता है तो वहाँ उसको यूज़ करते हैं, बट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इज द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग क्लोनिडीन, गाबापेंटीन, पैरोक्सिटीन ये तीनों दे सकते हैं, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज द HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्लोनिडीन को हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम विथ हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है आपका क्लोनिडीन। ठीक है, इन द कंट्रोल ऑफ मतलब ओपियोइड्स या स्मोकिंग का जो सिचुएशन होता है, उसका जो क्रेविंग होता है वो कम करने के लिए हम लोग, विड्रॉल का सिम्टम्स को कम करने के लिए हम लोग क्लोनिडीन देते हैं। नया ड्रग मार्केट में आया है लोफेक्सिडीन, लोफेक्सिडीन को यूज़ किया जाता है मोर देन क्लोनिडीन, तो ये आप जान के रखिए। डायबिटिक डायरिया होता है जिसमें देयर इज क्लोराइड सिक्रीशन, वहाँ क्लोनिडीन का रोल है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस जिसमें प्रोपेनोल ड्रग ऑफ चॉइस है, वहाँ भी क्लोनिडीन का रोल है। अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स, देन टोरेट सिंड्रोम, वहाँ पे भी हम लोग क्लोनिडीन का यूज़ करेंगे। साइड इफेक्ट में क्या आ जाएगा, हाइपोटेंशन, एपनिया इन 2 ईयर में हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, कम करता है।
ड्राई आइज, ड्राई माउथ करेगा, सिडेशन करवाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवाएगा। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेवर स्टॉप क्लोनिडीन सडनली बिकॉज देयर विल बी हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यू टू सडन इंक्रीज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे होता है तो फिर क्या दवाई दिया जाएगा? फेंटोकामिन उसको यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे क्लोनिडीन को फिर से स्टार्ट करना होगा और फिर उसको टैपर ऑफ करना पड़ेगा। तो अल्फा मिथाइल डोपा, दिस इज अल्फा 2A एगोनिस्ट, अल्फा 2A एगोनिस्ट। तो यूज़ कहाँ होगा? मदर्स में। दिस इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में लेबेटालोल के साथ ये के जगह में हम अल्फा मिथाइल डोपा को यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट में क्या आता है? डिप्रेशन, ड्रग ल्यूपस, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, और डिस्कैरिया ऑफ RBC भी देखा जाता है जो कोम टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो PIH या प्री एक्लेम्सिया में लेबेटालोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में लेबेटालोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो दिस वर ऑल अबाउट द अल्फा एंड बेसिक ऑफ sympathetic. We'll discuss beta in the next video.